Now, in chapter continuation of stoichiometry, we will take next topic double titrations. We will take next topic here double titrations in stoichiometry. Double titrations basically can be helpful to you for understanding nature of reactions bit better, and you may get questions in your mainly in J Advance on this topic double titrations. But some parts of this double titrations can be helpful to you in your almost all competition examinations. All competition, your JEE Main, NEET, AIMS, some parts of this double titration can be helpful to you. Okay, so anyway, we are starting double titrations now. In double titration, where we use double titrations? First, try to understand. Say we are using double titrations in those cases where we are given a mixture. That mixture can have combination of sodium hydroxide plus sodium carbonate, or we can have mixture of sodium carbonate plus sodium bicarbonate, or we can have mixture of sodium hydroxide plus sodium carbonate and sodium bicarbonate. We can have mixture where we can three possibilities can be there in mixture, NaOH plus Na2CO3, or we may have combination of sodium carbonate plus sodium bicarbonate, or we may have combination of all three compounds. In these three combinations, we may have questions on this topic double titrations. Now, what is double titration? Now, in double titrations, we are getting two endpoints using two indicators. Okay, so we are getting two endpoints using two indicators in double titrations. Like before we take that procedure, let us first understand on this concept first here. Okay, when we get mixture of three compound, these three combinations in mixture have NaOH plus Na2CO3, या mixture have sodium carbonate plus sodium bicarbonate, or mixture have all three compounds. In such cases, we are using double titrations. Okay, so what kind of questions are given to you in double titrations? See, we are getting the questions of double titrations on 3 points. They may ask you in first kind of questions that if sample is given solid, okay, solid mixture is given to you. In solid mixture, they may ask you to find the percentage composition. If the mixture is solid, they may require to find the percentage composition of each compound in the mixture. One kind of question. Second kind of question, they ask you if the mixture given as solution. In solution, they require to ask to find the strength in gram per liter of each substance. Gram per liter of each substance. So that is second way. Okay, solution given like 20 ml solution undergoing titration with this solution of acids. So in that kind of case, they may ask you to find the strength in gram per liter for each component. And third, they can ask you point regarding titer reading. Titer reading. इसका मीनिंग क्या होता है? Reading in titration. Reading in titration. So called titer reading. Actually, all these compounds taken here are basic in nature. All these compounds, strong base. This is salt of strong base. So solutions are all basic in nature. When all are basic, they consume acids in titration. This titer reading indicate here. This gives the volume of strong acid, commonly taken HCl or sulfuric acid required in titration. So called titer reading. All these compounds are basic in nature. NaOH is strong base. Salts are also basic in nature if they are made from reaction of strong base and weak acid. Now we क्या होते हैं strong acid or weak acids? I'll explain to you this procedure also. So first we take this is first requirement for studying double titrations.
that we may have a mixture of these two compounds, these two or all three compounds. Question given on this calculation of percentage composition if the mixture is solid. Second solution given, they require strength in gram per liter for each compound. Third kind of questions in titration, how much volume of the strong acids commonly taken HCl or sulfuric acid will be required in titration. Now for doing the question of double titrations, they need some background, some information you should have. Like I told you कि salt आपका basic है, आपके से salt basic कैसे हो गया? सारे salt basic नहीं होते हैं. Yes, it is true. All salts are not basic in nature. Salts can be taken from 4 kind of combinations by reaction of acid and base. आपको पहले वो समझाते हैं कि salt का नेचर कैसे पता लगेगा आपको है, ठीक है? हम उससे बताएंगे डबल टाइट्रेशन के ऊपर, ठीक है? तो पहले आपका थोड़ा सा जो हमारा बैकअप है, बेस है, इसको स्टडी करने के लिए हम पहले वो देखते हैं, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे डबल टाइट्रेशन को. ओके, देखिए हमारे पास एसिड और बेस आपके बारे में, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे आपको इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट फिलहाल थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मैं देता हूँ यहाँ पर. काफी बच्चों को पता होगा इसके बारे में, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिए. क्योंकि एसिड्स एंड बेस कैन बी टेकन 2 टाइप्स. हमारे पास एसिड्स होते हैं दो टाइप के होंगे. कौन से होंगे? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्या होता है? इन सॉल्यूशन दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड. इन सॉल्यूशन दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड. No reaction of equilibrium if we have solutions of these strong acids in solution, they show complete dissociation. One term is used here, alpha. Their degree of dissociation is equal to 1. One term is called alpha, degree of dissociation. To what extent? On dissolving in solution they can undergo dissociation. वो क्या होता है? इसको alpha. कितना होगा? alpha equal to 1. इसमें कौन से examples common है? फिलहाल आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखिए अपने पास कि कौन से कॉमन एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरा चैप्टर आपका है आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां पर हम सारा कुछ पढ़ेंगे. एसिड बेस का वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग है, अगर वीक है तो कितना वीक है, अमंग वीक कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, उनमें भी उनका स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारा पढ़ेंगे चैप्टर वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर है. तो फिलहाल देखते हैं एग्जाम्पल है इसका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HClO4, ठीक है ना, HClO4, HBrO4 टाइप कंपाउंड्स दे आर कॉमनली टेकन. HCl में सारे पे HCl, HBr, HI दे आर ऑल बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अगले होते हैं वीक एसिड्स. ये क्या होते हैं? इन सॉल्यूशंस दे शो partial dissociation. In solution they are partially dissociated. In solution they are partially dissociated. Meaning क्या होता है इसमें? अल्फा is less than 1. अल्फा क्या था हमने बोला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कि अगर आप 1 मोल एसिड लेंगे तो आपको कितना देगा? हाइड्रोजन आयंस लेस देन 1 मोल, बिकॉज इन सॉल्यूशन दे डोंट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ओनली पार्शियल डिसोसिएशन इज शोन बाय वीक एसिड्स. कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं इसमें? मोस्टली कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स, बट इवन इनऑर्गेनिक लाइक HF, HCN, CH3COOH, HCOOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4, H3PO3 एटसेट्रा. कॉमनली टेकन. आपका फॉस्फोरस सीरीज के सारे एसिड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं. लाइक H3PO4, H3PO3, H3PO2 सारे क्या हैं? वीक एसिड्स होते हैं. तो कॉमनली नहीं करेगा ऑर्गेनिक एसिड्स ऑलमोस्ट सारे ही वीक होते हैं, कुछ केस को छोड़कर. बाकी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स में लाइक HF, HCN, CH3COH, HCOH, it is called H2CO3 called carbonic acid. It is H3PO4 called orthophosphoric acid. और लास्ट क्या है? बोरिक एसिड. ये सारे क्या होते हैं? वीक एसिड्स.
ऐसे प्लस बेस क्या होंगे अपने, बेस कैन बी टेकन टू कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस ऑन सिमिलर लाइंस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। इसका भी कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं इन सॉल्यूशन, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। इसका अल्फा कितना होता है, इक्वल टू 1, फॉर देम अल्फा इज इक्वल टू 1। एग्जांपल्स में क्या क्या लेंगे, ऑल ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 1 मींस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल ग्रुप 1 ऑल हाइड्रोक्साइड, लाइक लिथियम थोड़ा सा कम होता है बट कॉमनली टेकन NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड इज ऑल in group 2 leaving beryllium hydroxide which is amphoteric, rest all can behave as strong base. You can take especially calcium hydroxide, down the group for them basic character increases, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide etc. they all behave as strong bases. फिर अपने weak bases कौन सा एग्जांपल आएंगे, in weak bases कंसेप्ट सेम है कि इन सॉल्यूशन दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड, अल्फा फॉर देम इज लेस देन 1, वी कैन कॉल देम वीक बेसिस। इसमें कौन सा एग्जांपल्स आएंगे इसके लिए, एग्जांपल्स में आएगा मोस्टली ऑर्गेनिक बेसिस, कॉमन सबसे आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैन टेक अदर ऑर्गेनिक बेसिस। Organic bases will be coming in the category of this weak bases, will come in the category of weak bases। समझ आ रहा है कि नहीं इसमें, तो एग्जांपल सबसे कॉमन आपका रहेगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड will be taken as weak base। ओके, तो पहले आपका हुआ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस टाइट्रेशन में ये पूछता है एसिडिक बेसिक। समटाइम्स सॉल्ट्स, समटाइम्स सम सॉल्ट्स can also be acidic or basic, sometimes some salts can also be acidic or basic। for salts, how to find the nature, it can depend on the combination of acid and base, it can depend on the combination of acid and base। okay, so let us take some salts also example wise कि how to know the salt's nature। now salts can be taken 4 categories depending on the combination of acid and base। salts can be taken 4 types, salts can be taken 4 types। 1 point राइट डाउन लिख लीजिए आप लोग, 1 पॉइंट लिख लीजिए, राइट डाउन लिखिए। the nature of salt solution, the nature of salt solution will depend, the nature of salt solution depend on the stronger part, the nature of salt solution depend on the स्ट्रॉन्गर पार्ट। स्ट्रॉन्गर पार्ट मींस अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। तो सॉल्ट्स कैन बी टेकन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट टेकन सॉल्ट्स ऑफ, फर्स्ट सॉल्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल टेकन लाइक NaCl, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल, देयर सॉल्यूशन है pH इक्वल टू 7। pH के बारे में वैरायटी नहीं है, डोंट वरी, आप ये सारा पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे न्यूट्रल होता है, डिटेल थ्योरी इसका इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम अंडर हेडिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा एक बार असिमिलेट कर लीजिए, याद कर लीजिए पॉइंट्स को, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार थोड़ा सा हल्का आइडिया रहेगा, बाकी आपका डिटेल्स में इन चैप्टर आने हम पढ़ाएंगे पूरा इसको। अगला पॉइंट रहेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल टेकन लाइक हियर, एग्जांपल टेकन लाइक हियर NH4Cl, अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा।
ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्गर एसिड। आपका अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। The solutions here become acidic. They have pH value less than 7, means they can react with the strong bases. That is salt or when it is salt or strong acid and weak base. हमने क्या बोला, stronger part will decide the nature of salt solution. इन दोनों में से क्या स्ट्रॉन्गर है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें, एसिडिक। ऐसे ही अगर आपका सॉल्ट है थर्ड कैटेगरी का, salt of weak acid and strong base। एग्जाम्पल क्या है इसमें, लाइक CH3COON है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट even you can take here, such kind of salts etc. इनमें क्या स्ट्रॉन्ग है, इन सॉल्यूशन सारे में क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है। देखिए सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट बनता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस होने पर। अगर हम रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस का तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है। अब हमारे पास चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसमें, न्यूट्रल रहता है, pH 7 रहेगा। pH 7 में सॉल्यूशन आपका क्या होता है, न्यूट्रल when we have temperature 25 डिग्री सेल्सियस। अगला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। बहुत सिंपल है, जो भी स्ट्रॉन्ग है वही जीतता है, जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतता है। आपका भी कंपटीशन सेम होता है कि जो बच्चा कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता है, लेबर करेगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो अल्टीमेटली जीतेगा कंपटीशन में। एनीवे सब लोग को एफर्ट्स करना चाहिए, जीत हार बाद में है, आप सीखो, ये ज़्यादा पे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। तो आपका पहला हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में एसिडिक होगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन क्या होगा उसमें, बेसिक। इन दिस केस सॉल्यूशन इज बेसिक। और कितना का पीएच इसका, मोर देन 7। पीएच निकालते कैसे हैं, ये सारा कुछ आपको सिखाएंगे इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम अंडर हेडिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फिलहाल आपका थोड़ा बेसिक आइडिया है, ये चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए। It is salt of last category, salt of weak acid and weak base। अगर दोनों वीक हैं तब क्या होगा, एग्जाम्पल टेकन लाइक अमोनियम साइनाइड, अमोनियम एसीटेट, तो यहां पर क्या होता है कि अबाउट सॉल्यूशन नेचर वी कैन नॉट बी श्योर। इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना पड़ेगा इसमें कंसेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम का, Ka और Kb वैल्यूज का। यहाँ पर क्या होता है, Ka हम लेते हैं, अगर देखिए Ka इज मोर देन Kb देन सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। इफ Kb इज मोर देन Kb more than Ka solution become basic। if Ka is equal to Kb तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें, न्यूट्रल। ये तीनों पॉसिबिलिटी होगा इस केस में। अब ये Ka और Kb क्या है, जिन बच्चों को पढ़ा होगा पहले से इनको आइडिया होगा, अदरवाइज एक सिंपल बोलता हूँ, Ka होता है द डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होता है, ऑफ वीक एसिड। ए फॉर एसिड, ऐसे Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इस Kb। तो अगर हमने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एग्जांपल लाइक अमोनियम साइनाइड, तो यहाँ पर आपका बेस क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस का, उसका होता है Kb वैल्यू, उसका जो हम क्या करते हैं उसका डिसोसिएट द वीक बेस, तो उस रिएक्शन के लिए एक होता है टर्म डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको होता है वीक बेस का, A फॉर एसिड। तो अगर आपका सॉल्यूशन में Ka वैल्यू बड़ा है Kb से, तो मींस क्या, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। अगर Kb बड़ा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर दोनों सेम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल।
जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ आप टेंशन मत लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलता भी नहीं है फिलहाल इन स्टोइकियोमेट्री, बिकॉज दोनों का रिएक्शन कर सकते हैं। तो एनीवे हमें ये चीज देखनी है पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप काफी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के अंदर भी, क्वेश्चंस के अंदर भी है। काफी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको देगा ए मिक्सचर ऑफ NaCl plus sodium carbonate is reacting with solution of HCl or sulfuric acid, या a mixture of Na2CO3 plus NaHCO3 plus sodium sulfate। मीनिंग क्या होता है कि आपको सॉल्ट भी रहते हैं उसमें। अब सारे सॉल्ट क्या होते हैं, ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेस। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद HCl, तब क्या हुआ इसमें, व्हाट इज NaCl, न्यूट्रल सॉल्ट, इसका रिएक्शन होगा ही नहीं HCl से। और ये सॉल्ट कैसा है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसे सारे सॉल्ट है, बेसिक है, तो दे विल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ HCl। ऐसे ही अगर सॉल्यूशन दिया है ए मिक्सचर कंटेनिंग NH4Cl plus CaCl2 ऑन रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, तब क्या होगा, NH4Cl is reacting strong base, it can produce ammonia in the reaction। So what happens in the mixture of compounds, which compound will react or which will not react, इसको डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलेगा इस इंफॉर्मेशन से कि देखिए जो भी अपने बेसिक कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड से, जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ। अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, इसका रिएक्शन किसी से नहीं होगा। अगर आपका सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका रिएक्शन एसिड से भी नहीं हो पाएगा और इसका रिएक्शन बेस के साथ भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको पॉइंट आपको हेल्प करेगा कुछ और क्वेश्चन को करने के लिए भी। कई बार क्वेश्चन पूछता है इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये क्वेश्चन का आया हुआ एग्जाम के अंदर है, इन द फॉलोइंग मिक्सचर्स व्हिच टू कंपाउंड्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट, व्हिच कंपाउंड कैन नॉट कोएग्जिस्ट। तो किसी भी मिक्सचर में अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा और सॉल्ट ऐसे होंगे, अगर उनमें रिएक्शन हो गया, अगर उनमें रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होता है, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। फिलहाल हम इस पॉइंट को रिकैप करते हैं एक बार फिर से। हमने बोला चार सॉल्ट, हमारे सॉल्ट होंगे चार टाइप्स के। पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, टक्कर बराबर की है, सॉल्यूशन न्यूट्रल। pH 7 होता है, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं हमने ऑलरेडी, हमने गिवन एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। फिर हमारे यहाँ सॉल्ट ऑफ सेकंड कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जो भी स्ट्रॉन्ग है वो जीतता है, ध्यान रखें हमेशा, स्ट्रॉन्ग जीतेगा। इसमें एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसमें, एसिडिक। एग्जांपल्स कॉमन लिया सॉल्ट लाइक सॉल्ट ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH वीक बेस, तो सॉल्ट का जगह आपको यहाँ पे एसिडिक, ऐसे एक एग्जांपल है। फिर थर्ड है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। यहाँ पर pH कितना होगा सॉल्यूशन का, यहाँ पर मोर देन 7 होगा। अगर हम लिखते सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अबाउट देयर नेचर वी कैन नॉट बी श्योर until we know the value of Ka and Kb। Ka Kb क्या होते हैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। फिलहाल अगर तुमको आइडिया है या थोड़ा सोचना चाहे सिंपल वे में सोच लीजिए कि अगर Ka होता है इसमें जो एसिड होगा when they dissociate partially, और बेस क्या होगा when the base undergo partial dissociation for the reaction of equilibrium। एक टर्म लिखते हैं Ka और Kb for the acid or base dissociation, the value of reactions equilibrium constant is called as Ka for acid, Kb for the base। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो दैट मींस आपका जो वीक एसिड और वीक बेस है वो भी इनका नेचर ऑलमोस्ट इक्वल है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में, तो क्या आपका सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल होगा। अगर Ka बड़ा है तो मींस एसिड स्ट्रांग हो जाता है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर Kb का वैल्यू बड़ा है Ka से तो क्या होगा, बेस स्ट्रांग होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। स्ट्रॉन्गर पार्ट विल विन ऑन द वीकर पार्ट, ये संसार का नियम ही है। ओके, आई गिव वन पॉइंट टू यू इन द प्रीवियस एग्जांपल, लाइक a question is given to you
which of the following mixture cannot coexist in solution. ये क्वेश्चन अगर पूछा हुआ था आपको, ऑप्शन ए दिया था इसमें NaCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी था इसमें HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट. In these mixtures, which mixture or mixtures cannot coexist in the solution? Can you tell the answer of this question? देखिए बहुत सिंपल है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें नेचर क्या है कंपाउंड्स का. ठीक है, आप कंपाउंड का नेचर देखते हैं पहले, फिर आप क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. फर्स्ट यू अप्लाई योर ऑन knowledge, then try, then tell the answer. Okay, done the answer. Now to see the answer of this question, देखिए पहले क्या है, see the nature of compounds. इसमें क्या था पहले पेयर में, what is NaCl, न्यूट्रल सॉल्ट. ये क्या है, सॉल्ट बेसिक है, तो उसमें क्या होगा, नो रिएक्शन. तो इन सॉल्यूशन दे कैन एग्जिस्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. इनका रिएक्शन आपस में नहीं होता है. जिस भी कंपाउंड से मिक्सचर में कंपाउंड्स के रिएक्शन नहीं होते हैं, इन सॉल्यूशन दे कैन रिमेन टुगेदर, दे कैन कोएग्जिस्ट. अगला क्या है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. हमारा ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है. सॉल्ट कैसा है, बेसिक. तो बेस का रिएक्शन बेसिक सॉल्ट से नहीं होता है, तो इन सॉल्यूशन दे कैन कोएग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्शन. बट यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, सॉल्ट. बट सॉल्ट में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन. सॉल्ट बेसिक है बट में एसिडिक हाइड्रोजन है, इट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन्स. तो दे रिएक्ट टुगेदर. क्या होगा रिएक्शन होने के बाद इसमें, दे विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, जिसका भी आपस में रिएक्शन हो जाएगा कंपाउंड्स का आपस में, वो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्यूशन में दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट. इसमें क्या था प्रॉब्लम, ये हाइड्रोजन इसमें एसिडिक है, इसका रिएक्शन हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस से हो जाएगा, और रिएक्शन होता बनेगा इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. सो दिस कॉम्बिनेशन इन सॉल्यूशन कैन नॉट कोएग्जिस्ट. लास्ट ऑप्शन देखिए, ये सॉल्ट कैसा है, salt is made by reaction of strong base and weak acid. We discussed just now. Yes, this acid is how much, which category, H2CO3 is weak acid, NaOH क्या है, strong base. तो salt क्या आपका हो जाएगा, basic, और ये क्या है, strong acid. यहां भी क्या होगा, they will react together. तो क्या बनेगा इसमें आपका, H2CO3 plus NaCl. We can write this mixture as H2O plus CO2 plus NaCl. So what should be your answer finally of this question? Option C and option D. तो ऐसे क्वेश्चन कभी मिलता है एग्जाम के अंदर आपको है, तो आप क्या सोचेंगे उस क्वेश्चन में कि आपको वो पेयर चूज करना है जिसका आपस में रिएक्शन नहीं होगा. That kind of mixture and solution can coexist. अगर आपस में रिएक्शन हो जाएगा दो कंपाउंड्स का या सब्सटेंसेस का, तो क्या होगा, जब रिएक्शन हो जाएगा इन सॉल्यूशन दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. कि अगर क्वेश्चन ये जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई जस्ट मॉडिफाइड 1-2 बिट हियर, बट क्वेश्चन का नेचर सेम था. एंट्रेंस के अंदर आपको और पूछते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन से, तो आपको क्या सोचना है, जिसका रिएक्शन साथ में नहीं हो पाएगा आपस में, जिन दो कंपाउंड का रिएक्शन नहीं होगा इन सॉल्यूशन दे कैन कोएग्जिस्ट. बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का रिएक्शन बेस या एसिड से नहीं हो पाएगा, दे कैन रिमेन. बट यहां पर क्या है, ये कंपाउंड क्या होता है, इट कैन हैव बोथ नेचर. कैसे, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो इट कैन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है विद वीक एसिड्स, तो सॉल्ट बेसिक है, इट कैन रिएक्ट विद द
स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अगर आपस में रिएक्शन हो जाएगा कंपाउंड्स का, तो ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं सॉल्यूशन में, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर दिस एग्जांपल। So now we come on double titration. We will discuss a brief introduction of the acid and base which can be reacting with the strong acid or strong base. So in solving questions that nature was compulsory. So we just given that introduction to you about the nature of salts. कि all salts are not neutral. Some salts can be neutral which are made by the reaction of strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो न्यूट्रल होते हैं। अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सोल्यूशन एसिडिक होता है। अगर आपका एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होता है। अगर दोनों वीक होते हैं तो उसके बारे में क्या होता है, अबाउट नेचर ऑफ सोल्यूशंस हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, उसके बारे में हम श्योर नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा आयनिक के अंदर जाना पड़ता है। इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम आपको तब पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में, बट फिलहाल आप आते हैं इसी पॉइंट पे। नाउ वी टेक डबल टाइट्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है डबल टाइट्रेशन का? देखिए डबल टाइट्रेशन क्या होते हैं, लिख लीजिए रेडन कि डबल टाइट्रेशंस, इन डबल टाइट्रेशंस वी गेट टू एंड पॉइंट्स, वी गेट टू एंड पॉइंट्स यूजिंग टू इंडिकेटर्स। We get two endpoints using two indicators. क्या होते हैं? We get two endpoints using two indicators. Two indicators. ठीक है ना? That means simple double titration. एक होता है सिंपल टाइट्रेशंस, उसमें क्या होता है कि वी यूज सिंगल इंडिकेटर एंड गेट सिंगल एंड पॉइंट। बट इन डबल टाइट्रेशन क्या होता है, वी आर गेटिंग टू एंड पॉइंट्स बिकॉज वी आर यूजिंग टू इंडिकेटर्स। नाउ इन दिस केस वी आर यूजिंग व्हिच इंडिकेटर्स, वी आर यूजिंग फर्स्ट इंडिकेटर टेकन हियर इज यूज्ड योर phenolphthalein, phenolphthalein। It gives the color change or endpoint at a pH range 8.5 to 10. In this pH range, it shows the color change. So solution taken in the beginning is strongly basic. इसका नेचर क्या होता है? The solution in basic medium will have pink color and acidic medium will have no color, colorless. So when solution have basic medium pH value more than this 10, it have pink color, and when solution of neutral nature pH will fall below 8.5, then solution become colorless. The solution become colorless. So it is decolorization the term is used there. तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें solution का nature क्या है? You can just memorize or remember कि this indicator give the end point, आप लिख लीजिए phenolphthalein give the end point or color change, give the endpoint or color change when solution contain sodium bicarbonate. Solution contains sodium bicarbonate and other neutral substances, and other neutral substances or salts. Okay, this indicator will show the color change when solution will convert to sodium bicarbonate. It have the pH range in this range, pH value in this range. तो solution show color change due to indicator phenolphthalein, पहला point. Then we will use second indicator. देखिए आपको क्या होता है कि to get one end point we use one indicator. यहाँ पे का two end point तो आपको रिकॉर्ड होगा two indicators. आपका second क्या है इसमें indicator? Methyl orange, methyl orange. ये कब देगा एंड पॉइंट? इट गिव्स, इसका पहले देखो पीएच रेंज, इट है पीएच रेंज 3.1 to 4.5. In this pH range it shows color change. In this pH range it shows color change. ये कैसे आपको मिलेगा pH? लिख लो उसमें, this solution give the end point
means color change. This solution give the endpoint or color change. When solution contain small amount, when solution contains small amount of strong acid, when solution contains small amount of strong acid means they should have pH value below 7 in this range. They have pH value below 7 in this range. Then the solution shows color change due to indicator methyl orange. Due to indicator methyl orange. Okay. So means in this case solution का होना चाहिए a small amount of acidic medium HNS. Now in double titration I gave you the earlier introduction or point कि when mixture can contain NaOH, I am writing the combination of all three NaOH plus Na2CO3 plus NaHCO3. Solution can contain mixture of all three or any of the combination. Combination means it can have NaOH plus Na2CO3 or it may have Na2CO3 plus NaHCO3 or all three. There are three combinations given in double titrations. Only sometimes in place of sodium compounds they may give potassium compounds, like they may give potassium hydroxide, potassium carbonate या potassium bicarbonate. तो उसमें क्या होगा? There is no effect on the reaction sequence. Nature of reaction सब same होते हैं. Only amount will differ in weight because those compound have different molar mass. KOH or NaOH have different molar mass. So when we change the compounds, molar mass can change, so amount can change. But regarding reaction sequence, nature of reactions वो सब कुछ same रहता है. ठीक है? तो अगर आप बस तीन compound दिए हैं इसमें, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे इसमें? They can react mutually. I told this point right now कि ये क्या होता है? In solution when we dissolve, they will react together to form sodium carbonate. But उससे भी क्या होता है कि there is no effect on the amount of acid required in titrations. रिएक्शन करेंगे फिर भी क्या होता है? जितना acid required है आपको titration में उस पर फर्क कुछ पड़ता नहीं है. तो you can do the question without this reaction consideration as well. बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ उस पॉइंट को कि इनका रिएक्शन आपस में हो जाता है. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. ये आपका सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं इन सॉल्यूशन. बट उससे भी क्या होगा? नो इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड इन द टाइट्रेशंस. अब देखो सारे कंपाउंड्स क्या है यहाँ पर है? ऑल द कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर. ऑल आर बेसिक. ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ये सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3. ये भी सेम है. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. तो सारे कंपाउंड कैसे हैं? बेसिक हैं. अगर सारे बेसिक हैं तो क्या होगा? दे ऑल विल कंज्यूम एसिड्स इन टाइट्रेशन. इन डबल टाइट्रेशंस वी आर टेकिंग एसिड इन द ब्यूरेट and this solution in the conical flask. Okay, this mixture is taken in the conical flask. This mixture is taken in conical flask and we take in burette. We take HCl or sulfuric acid is taken in the burette. Strong acid is taken in burette. This mixture of base is taken in the conical flask to start procedure. अब हमने रिएक्शन शुरू कर दिया कि सपोज हमने इसको लिया ब्यूरेट में और इसको लिया फ्लास्क के अंदर है, या you can take beaker also, but flask is taken to avoid the wastage of chemicals. So when you start the reaction of this mixture with the given compounds, acids और acid, तो क्या होगा? रिएक्शन कैसे होगा कि सपोज सोल्यूशन में तीनों कंपाउंड हैं. एक एग्जांपल लेता हूं, सिचुएशन लेता हूं कि एक सोल्यूशन में तीनों कंपाउंड्स हैं एंड वी आर एडिंग सपोज 30 ml ऑफ HCl. तो उसमें रिएक्शन कैसे होना चाहिए उसका? तीनों ही भूखे हैं, तीनों पे आपको बेस है, सबको एसिड चाहिए रिएक्शन करने के लिए. तो कैसे रिएक्शन होना चाहिए? सपोज वी आर एडिंग 30 ml, तो क्या होना चाहिए इसमें? कैन
इट बी सेड दैट तीनों ऑनेस्ट हैं, ये लेगा 10 ml, ये लेगा 10 ml, ये लेगा 10 ml, भाई तीनों का पेट खाली है, तीनों ने बांट दिया इसको, भाई तुम लो 10, तुम लो 10, तुम लो 10। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट फर्स्ट एंड रिएक्ट कंप्लीटली। ये स्ट्रॉन्ग है, ये बोलेगा मुझे पूरा एसिड चाहिए पहले, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं अगले को दूंगा। मीनिंग समझ रहे चीज का? इसका रिएक्शन पूरा होने के बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होगा अगले कंपाउंड का। तो रिमेंबर 1 पॉइंट अगर राइट डाउन लिख लिया, पॉइंट राइट डाउन। In the acid-base reactions, a strong acid and strong base, will react first and fastest. A strong acid and strong base will react first and fastest. Only after reaction of strong base, weak acids or weak base can react. Only after reaction of strong acid or strong base, or strong acid, weak acid or weak base can react. Okay, तो I hope this is clear. अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर सपोज सॉल्यूशन में तीनों कंपाउंड्स हैं तो उनका रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले रिएक्शन किसका होगा? तो आपको ये ध्यान रखना पॉइंट को है, अगर तीनों कंपाउंड है सॉल्यूशन में तो फर्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे, सीक्वेंस क्या होगा रिएक्शन का? पहले रिएक्शन होगा NaOH का, पूरा NaOH खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन में। अगर पूरा NaOH खत्म हो जाएगा उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा सोडियम कार्बोनेट का, और इसका रिएक्शन डायरेक्टली नहीं बनेगा, इसमें सॉल्ट्स और सॉल्ट बनेंगे। बट क्या होता है, इट फर्स्ट कन्वर्ट कंप्लीटली टू सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले NaOH का रिएक्शन होगा, NaOH का कंप्लीट कंजम्पशन होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा सोडियम कार्बोनेट का, और ये आपका रिएक्शन करेगा 2 स्टेजेस में। इसका रिएक्शन का होगा 2 स्टेज में। पहला स्टेज क्या होगा, इट कंप्लीटली कन्वर्ट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पूरा कन्वर्ट होने के बाद फिर आपका रिएक्शन होगा थर्ड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इफ वी टेक एसिड लाइक HCl, इट मे फॉर्म NaCl, और इफ वी टेक रिएक्शन सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट कैन फॉर्म सोडियम सल्फेट। मीनिंग क्या होता है कि पहले हमारा रिएक्शन NaOH का कंप्लीट होगा, फिर कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन होगा 2 स्टेप में। इन फर्स्ट स्टेप इट कन्वर्ट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, देन वी गेट फर्स्ट एंड पॉइंट ड्यू टू इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन। इसका लिंक ये है कि जब हमारा ये सोडियम कार्बोनेट पूरा कन्वर्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, then solution of pH range around this, so we get color change, decolorization of solution because of indicator phenolphthalein, अगला आता है रिएक्शन, जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसके प्रेजेंस में आपको कलर चेंज मिलता है, then we add indicator methyl orange and then reaction continue। ये करना है NaCl या सोडियम सल्फेट, and then extra addition of HCl or sulfuric acid, they bring the solution pH around this range। तो here we get the second end point due to indicator methyl orange। समझ आया? आपको मिलेगा फर्स्ट एंड पॉइंट जब ये रिएक्शन जब आपका रिएक्शन ये होगा सोडियम कार्बोनेट will convert to sodium bicarbonate, we get first end point due to indicator phenolphthalein। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, इसका रिएक्शन होगा, ये कन्वर्ट होता है किसमें NaCl में या सोडियम सल्फेट में, प्लस एक्स्ट्रा 1-2 ड्रॉप ऑफ एसिड, सॉल्यूशन कितना आएगा pH बिलो 7, दैट रीच अराउंड दिस। pH कैसे निकालते हैं ये आपको पूरा सिखाएंगे इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए आयनिक बच्चों का वीक होता है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट क्लियर इन द कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री।
नॉर्मली आप बच्चे अपने सीनियर्स होते हैं उनसे पूछिए कि आईने ठीक से नहीं होता है, उसका रीजन क्या है कि उनका स्टोइकोमेट्री पार्ट वीक होता है। इवन आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए चैप्टर जरूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है, बिकॉज आपको हेल्प करता है क्वेश्चन सोचने के लिए, लॉजिक सोचने के लिए। और बिना स्टोइकोमेट्री के केमिस्ट्री में, स्पेशली आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ये स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डेफिनेटली बी श्योर टू बी स्ट्रॉन्गर इन फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। और आपको जानते हैं कि एंट्रेंस में फिजिकल केमिस्ट्री है अराउंड मैक्सिमम वेटेज अमंग ऑल 3 ब्रांचेस। तो एनीवे ये रिएक्शन पूरा होगा, NaOH कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा फर्स्ट एंड पॉइंट, फिर इसका रिएक्शन आगे चलता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। व्हेन इट कंप्लीटली कन्वर्ट टू सॉल्ट्स देन वी गेट सेकंड एंड पॉइंट by the indicator methyl orange. That is we get 2 endpoints using 2 indicators, using one indicator one endpoint, second indicator second endpoint. Okay, to explain this example of double titration, I'll explain through an example first here, theoretical, then we'll do some question practice कि different kind of question में कैसे आपको approach करना है double titration के ऊपर. Okay.